नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर हफ्ते तो आप सिर्फ मुझे ही सुनते हैं और मेरे ही विचार आपको मैं सुना पाती हूँ, मेरे ही एक्सपीरियंसेस, मेरे ही विचार और मेरे ही किस्से। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि जिसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा लोगों के या बाहर के लोगों के विचार कुछ पता चले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ ही ये एक्सपेरिमेंट शुरू करूं कि मैं एक ही प्रश्न 3-4 लोगों से पूछूं और देखूं उनका क्या रिएक्शन होता है। तो ये एपिसोड जो होगा, ये जो टॉपिक है मेरा, ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में या 3 से 2 पार्ट्स में होगा। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, अभी डिसाइडेड नहीं है, बट एटलीस्ट 1 में तो नहीं कवर होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आई विल बी टॉकिंग टू द एल्डर्स यानी द पेरेंट्स। सेकेंड एपिसोड में मैं यंग अडल्ट्स के बारे में बात करूंगी और उनसे कुछ विचार आपके सामने पेश करूंगी। और थर्ड एपिसोड में जो घर के यंगस्टर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, नॉट अडल्ट्स, सो अंडर द एज ऑफ 18 या इवन अंडर द एज ऑफ 16, उनसे बात करूंगी। तो कोशिश ये है कि हर पीढ़ी का नज़रिया या हर पीढ़ी का कंट्रीब्यूशन ले सकूं इस पर्टिकुलर सवाल में। तो सवाल क्या था कि what is the most challenging thing or part of being a parent? तो पहले मैं क्या करूंगी कि मैं सबके जवाब आपको सुनाऊंगी और फिर उसके बाद कोशिश ये करेंगे जानने की कि जो विचार उन लोगों ने प्रकट किए या जो उनके चैलेंजेस हैं, उसको कोशिश करूंगी कि मैं कैसे उसके बारे में सोचती हूँ या मैं उसके बारे में मेरा क्या विचार है कि जो उनका चैलेंज है। One most challenging part would be being their friends, I would say. So you mean how to be their friends? Yes, how to be their friends. You try to be their friends, but then like they try to tell you something and then suddenly you form a judgment about it, which is, I mean, not right, I would say. If you want to be their friend, be open about it, talk things openly in front of them, not to be like, oh my god, what will she think, and it's not right for her to know it now, she's not at the right age. But is there a right age, I would say, for the kids to know things, to be their friends? Because I think this is the time when the parent has to be a friend rather than being a parent. So I think that's the most challenging thing, what I would say a parent always faces, especially being an Indian parent and you're brought up in such a way with Indian ethics. Yeah, I would say that's what's the best challenging, is where you have to be their friend and then you have to be a parent at the same time. How do you, like, you have to juggle between. Okay, thank you. So that's the most challenging, I would say. All right. The most challenging part for being a parent for myself is to how to become their best friend, and then how to install the core values to them. Because what happens is that when you try to instinct on them that you have to do this, they just revolt. So challenging part is to match the frequency with them and try to become their friend, and then you try to instinct the values what you want to your kids to be, and how you see them that they should grow in the future. So challenging part is to become their friend. And do you think you are able to do that? No, not yet. Not yet. Slowly I'm trying. So You're trying, the best thing is that you have to sacrifice your time from your work and need to talk with more and more with them and to find out what their ideas is and how do they think. I mean, if they see a situation, how do they react and how do they think, and that you can know by becoming their friend. So still I'm in learning process for that one. सबसे ज़्यादा तो यहाँ का जो है कि लेडीज़ को जॉब के साथ साथ ये करना, जॉब के साथ साथ बच्चों को संभालना, हस्बैंड को भी देखभाल करना, फिर घर का सब काम करना, तो ये सब कुछ मैनेज करना होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे पर हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे लिए अगर कहें तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है बच्चों के साथ सही वक्त गुजारना। वो तुम नहीं कर पा रही हो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। ओके,
पेरेंटिंग में सबसे मुश्किल पार्ट ये लगता है कि कभी कभी बच्चों के साथ जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन हम शायद अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह क्या है वो समझ में इतनी जल्दी नहीं आ रही है। कभी उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी भी कोई गलती है कि हम बच्चों को ज़्यादा डांट फूट देते हैं या ऐसे कर देते हैं, या दूसरी उनकी तरफ से इतना खुला लाइक व्हाट हम जो कम्युनिकेशन करना चाहते वो वाला कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो मुझे एक पेरेंटिंग में कम्युनिकेशन इज़ अ बिग चैलेंज। एंड दूसरा पॉइंट मैं उसमें यह ऐड करना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन इसके लिए भी है कि बच्चों का यहाँ एजुकेशन इंग्लिश में पूरा जा रहा है और हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तभी कभी उसमें भी वो उसी में भी वो लाइक बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज भी हमारा एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन बनता है शायद। अच्छा, तो बैरियर तुमको लैंग्वेज लगता है? एक बैरियर लैंग्वेज भी होता है। एंड नाउअडेज कंपीटिंग विद द टेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर नॉट दैट मच savvy टेक्नो savvy। हमें कभी कभी उनसे सीखना पड़ता है बैठ के कि भाई यार ये बताओ कैसे होता है, ये बताओ कैसे होता है, और उनको बाद में मालूम पड़ जाता है कि मेरे बाप को तो मालूम है ही नहीं ये क्या है। तो दे आर हैविंग ए चांस टू टेकिंग बेनिफिट ऑफ अस। बेनिफिट, और या फिर ये कि वो तुम्हें थोड़ा इंफीरियर समझते हैं। हाँ, तो वो एक पेरेंटिंग में वो चैलेंज है। To make them understand what is important in their future life. So because they are still kid, they don't understand about the future. So it's your job to make sure that they understand what's going to come in the future and they should be ready for that. Okay, so can you give an example? Like study, spending money and things like that. Okay, so making them conscious that they should study and the importance of money. Yes. Okay, and that is the most challenging thing for you. Yes. And how far have you achieved? Do you think you are doing well? Yeah, I'm on the task and yeah, I'm doing well so far. तो आपने देखा सबके जवाब। अब मैं कोशिश करूंगी एक एक चीज को एड्रेस करने की। तो एक बड़ी अजीब सी चीज देखी मैंने कि एक ही फैमिली के जो पेरेंट्स थे, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनका चैलेंज एक ही था। एंड द चैलेंज वाज कि हम, सबसे बड़ा चैलेंज था हाउ टू बिकम अ फ्रेंड टू द किड, एंड दैट वाज नॉट द एंड ऑफ इट। कि फ्रेंड तो बनना ठीक है, लेकिन हाउ टू बैलेंस being a parent and then being the person to instill or to give the values and to do the right thing by the kid. तो ये जो बैलेंस है वो कैसे होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उन लोगों के लिए। कहते हैं ना कि बच्चों को के साथ आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जिससे कि वो हर चीज़ आपको बताएं। कहना तो बड़ा आसान है ना, लेकिन करना कितना मुश्किल। तो एक्चुअली इस पॉइंट को लेकर मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने सोचा वो मैं शेयर करूं। तो पेरेंट्स जब फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं और बच्चा ये सोचता है या लाइक कन्विंस हो जाता है कि यस माय पेरेंट्स आर माय फ्रेंड्स, एंड ही स्टार्ट्स टू शेयर और शी स्टार्ट्स टू शेयर थिंग्स विद द पेरेंट, फिर वो कोई ऐसी बात बोल देता है कि जिससे पेरेंट्स जो हैं थोड़े गच्चे में आ जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया इसने। फिर उनके वैल्यूज़ और वो सब आप बाहर आने लगते हैं और वो बच्चे को जज करने लगते हैं, या वो बच्चे को के सामने फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अरे ये तो तुम्हें नहीं करना, ये तुमने कैसे। फिर वो पेरेंट वाला सीन वापस आ जाता है, तो वो फ्रेंड वाला वापस गायब हो जाता है। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको डर है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी गलत चीज़ से, किसी भी घटना से। वो चाहते हैं कि बच्चा प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। इन सेइंग दैट, अगर यही जरिया रहा तो बच्चे कैसे आपके दोस्त बनेंगे, है ना। तो फिर तो 2-3 चीजें मुझे ठीक लगी जो दिमाग में आई। तो पहली ये कि ये जानना या इस चीज को समझना कि जिस दौर से आपके बच्चे गुजर रहे हैं वो एक समय आप भी उस दौर से गुजरे थे। नहीं होता है
कि पेरेंट्स जब आते हैं घर में तो बैचलर्स का दिखाते हैं, कितनी जगह दिखाते हैं कि बैचलर रहते हैं अकेले, सब पीते पाते रहते हैं, पर जैसे ही पेरेंट्स या फादर की एंट्री या मदर की एंट्री हुई सारी बोतलें छुपा देते हैं, क्योंकि फादर से तो भाई फादर के सामने कैसे पिएंगे। तो क्या है, क्या फादर ने कभी पिया नहीं है? फादर ने अपने समय में कोई ऐश नहीं करी है? ऐसा तो नहीं है ना। पर फादर ने हमेशा, मतलब जैसे ही बड़े हुए बच्चे तो उन्होंने अपना संतों वाला चोंगा पहन लिया, कैसे जैसे कि भैया इनसे तो ज़्यादा उसूल वाला कोई है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं ना, सब तो वो भी किए धरे। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हम भी तो ह्यूमंस ही हैं ना, हमने भी तो गलतियाँ की हैं अपने जीवन में। तो उन गलतियों को बच्चों को समझाने के लिए हमें उन्हें सुनाना पड़ेगा, उन गलतियों को वापस से जीना पड़ेगा। फ्रेंडशिप से उठकर तुरंत ही उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं चीज़ों पे। अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं और ओपनली समझाएं नहीं, अपना किस्सा सुनाएं, जिससे कि वो ये उन गलतियों को रिपीट ना करें। और अगर उस तरफ फिर भी वो जा रहे हैं तो उनकी गलतियां होंगी, वो खुद समझदार हैं बच्चे, खुद समझ के ठोकर खा के आगे बढ़ेंगे। बट एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से सब क्लियर रखा है और आप फिर भी उनके दोस्त बने रहे। क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स सेड कि फ्रेंड होने के साथ साथ टू सॉर्ट ऑफ जो कोर वैल्यूज़ हैं वो भी अंदर डालना बच्चों में। तो कितना अजीब बात है कि जब आप एक तरफ फ्रेंड्स, ऐसा लगा कि जैसे फ्रेंडशिप और जो कोर वैल्यूज़ हैं दे आर ऑपोजिट, कि अगर आप फ्रेंड हो गए तो ये जो कोर वैल्यूज़ हैं आप डाल नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आप नहीं कर सकते ना, फिर आप उनको सबक नहीं सिखा सकते। क्यों? क्या फ्रेंड्स हम में कोई कोर वैल्यू नहीं डालते? फ्रेंडशिप की, ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, सब तो फ्रेंड्स भी सिखाते हैं एक दूसरे को ना। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप उस मोड में हो तो आपको इतना स्ट्रेस हो, ये मेरा सोचना है। आप फिर भी कर सकते हो इस चीज़ को और इस हर्डल को क्रॉस कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस फ्रेंड से जब मैंने पूछा कि आर यू सक्सेसफुल और डू यू थिंक यू आर डूइंग वेल इन दैट कैटेगरी और इन दैट एरिया, ही सेड नो, आई एम स्टिल ट्राइंग। सेकेंड पॉइंट, वन ऑफ द पेरेंट्स सेड कि द टफेस्ट पार्ट वाज बैलेंसिंग द वर्क, कि यहाँ औरतों को काम भी करना पड़ता है और घर भी संभालना पड़ता है, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है, घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। और इतने सारे काम और इन चीज़ों में कहीं वो जो वक्त बच्चों के साथ बिताना चाहिए वो नहीं कर पाती। और इसका सबसे ज़्यादा उसको चैलेंज लगता है कि कैसे वो टाइम में बिता सकूं बच्चों के साथ। यस, ट्रू, ऐसा है और ये तो रहेगा ही, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो दुनिया भर के काम भी होंगे और वो भी होगा। तो अगर आपको समय बिताने की इच्छा है बच्चों के साथ तो आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और समय बिताने का ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं, आप निकाल तो सकते ही हो, 1 घंटा निकाल लो, वीकेंड में कोई टाइम निकालो। वीकेंड मतलब जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन का कोई टाइम निकाल लो, पहले से सब कुछ निपटा दो। स्कूल के बाद ऐसी कोशिश करो कि कुछ ऐसा करो जो बच्चे को पसंद हो, आपको नहीं, जो बच्चे को पसंद हो, तभी आप समय बिता सकते हो। कि जो दूर हो गया है उसको पास लाने के लिए तो कदम उठाने पड़ेंगे ना, उस तरफ चलना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें या यही उम्मीद करती रहें कि अरे यार मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जब आपके पास समय होगा तो उनके पास समय नहीं होगा। तो जो समय है उसको प्लीज़ थोड़ा कुछ कदम चलें। और फिर वही कि फिर वहाँ जाके जैसे होता क्या है, आपको लगता है आपको समय बिताना है उनके साथ, लेकिन फिर आपको हर चीज़ उनकी ऑब्जेक्शनेबल लगती है कि ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या हर वक्त यही खेलते रहते हो। फिर वो नहीं होना चाहिए। जब आप जा रही हैं उनके पास तो उनके हिसाब में रहिए, क्योंकि फिर वो क्लोज हो जाएंगे। अगर आप समय बिताने जाएंगे तो उनके लिए तो वो समय स्ट्रेसफुल हो जाएगी कि हे भगवान, ये तो वो घंटा है कि जब मदर फादर आके हमारे साथ बैठने वाले हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि दे लुक फॉरवर्ड टू इट। बड़ा चैलेंज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई डेफिनेटली पसंद सबकी अलग अलग है। तो अगर आपको समय अपने बच्चों के साथ बिताना है तो फिर वही चीज़ देखिए जो बच्चे को देखना है, तभी वो टिकेगा वहाँ, वरना वो नहीं टिकेगा। थोड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे अगर आपको समय बिताने की इच्छा है। तो ये एक बात हो गई। अब एक और फ्रेंड जिसने बोला, उसका थोड़ा मुझे टची लगा और थोड़ा बहुत ही जेन्युइन लगा, तो मुझे लगा कि इसको बहुत अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। तो उसने 2-3 चीज़ें बोली। एक तो सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मैं दूं कि वो
ऑफ कोर्स इंडिया से जो भी आता है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं, किसी की हिंदी है, किसी की गुजराती, और हमारे ग्रुप में गुजराती बहुत हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ गुजराती। तो वो हिंदी भी बहुत सटीक शायद ना बोलें, अंग्रेज़ी तो काफ़ी दूर हो गया। ऐसा नहीं कि गुजरात में कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता है, लेकिन ये स्पेसिफिक फ्रेंड्स जो हैं ये लोग थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हैं। फिर भी मैं तो हमेशा इनका किस्सा सुनाती हूँ, हैट्स ऑफ टू देम द वे दे हैव डन इन ऑस्ट्रेलिया। एनीवेज वो सेकंड पार्ट है। बट उसने 2-3 चीज़ें बोली जो मुझे थोड़ा सा टच कर गई। एक तो सबसे पहली चीज़ बोली कि जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ वो नहीं हो पाता, और कहते हैं कि कहीं जो चाहते हैं बच्चों को कम्युनिकेट करना वो नहीं कर पा रहे हैं, और कारण क्या है ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये उसने बोली। दूसरी चीज़ उसने ये बोली जो मुझे काफ़ी फील हुई कि लैंग्वेज हैज़ बिकम द बिगेस्ट बैरियर। क्योंकि बच्चे तो यहाँ पल बढ़ रहे हैं, तो उनकी तो वो तो फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं, और 99% टाइम दिन में अंग्रेजी ही में ही बात करते हैं। और माँ बाप ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी बोलने में तकलीफ होती है, वो गुजराती बोलते हैं, तो बच्चे तो क्या बोल के निकल जाते हैं, उन्हें तो कई बार पता भी नहीं चलता, समझने में टाइम लगता है। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज लगा उनको, लगता है उस पेरेंट्स को। और तीसरी चीज़ उसने 3 चीज़ें बोली थी, तो ये तीसरी चीज़ ये कि आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्नो सावी हैं। दे नो अ लॉट अबाउट दीज मशीन्स, बहुत उनको पता होता है, ज्ञान होता है। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि अगर आपको कुछ करना है, कई जगह कई घरों में क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, और बच्चों में वो पेशेंस नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को चीज़ सिखाएं। और कुछ हद तक पेरेंट्स में भी इट इज़ एम्बैरसिंग फॉर देम टू गो एंड आस्क देयर किड्स कि भैया ये बता दो कैसे है, या कि ये दिमाग में इम्प्रेशन कि अगर मैंने पूछा तो वो मुझे क्या सोचेंगे कि अरे बाप को या माँ को ये तक नहीं आता, साले साहब बुद्धू हैं या दिमाग से पैदल हैं। तो जो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर है वो तो देखिए कई बार मैंने एड्रेस किया मेरे कई वीडियोस में कि कैसे कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करें, तो वो इशू मैं नहीं एड्रेस करूँगी, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। जो आज भी अगर आप देखें तो पिछला जो फ्रेंड्स वाला सेक्शन है उसमें भी मैंने इस पॉइंट को एड्रेस किया है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मुझे लगी वो था लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर जो है मैं इसलिए कम समझती हूँ क्योंकि अगर भाई ठीक है पेरेंट्स को गुजराती ही आती है और बच्चे इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन हम लोग की फैमिली में बच्चों को भाषा समझ ज़रूर आती है, बोले ना बोले। अब हमारे घर में लड़का हिंदी में बात नहीं करता लेकिन उसको हिंदी पूरी समझ में आती है, तो अगर मुझे प्रॉब्लम होती है अंग्रेज़ी बोलने में तो भी आई कैन कम्युनिकेट टू हिम वाया माई ओन लैंग्वेज, बिकॉज वो समझ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगा, है कि आप जो भाषा जानते हैं बच्चे सब आपको समझते हैं, बचपन से देखा है, पैदा आप ही के पास हुए हैं, आप ही के गोद में पले हैं, तो वो सब समझते हैं। तो मत सोचिए कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा धीरे बोलो अगर इंग्लिश में बोलना और आपको गुजराती नहीं आती है, या गुजराती में बात करो, क्योंकि एक लैंग्वेज है जो वो आप दोनों जानते हो अच्छे से, तो उसी लैंग्वेज का प्रयोग करें ना। इंग्लिश को घर के अंदर थोड़ा छोड़ दें, और कभी ना सोचें पेरेंट्स कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो वो कुछ कम है। नहीं, कम तो नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जो बनाई है बच्चों की वो तो आपने ही बनाई है ना, तो कहीं से भी कम नहीं है, बहुत हैं आप। कभी नहीं सोचें ऐसा। तीसरी चीज़ कि टेक्नोलॉजी वाली बात कि वो कई बार बच्चे एडवांटेज लेते हैं क्योंकि उनको कहीं ये पता है कि बाप को तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है या माँ को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, चलो उल्लू बना दें उनको। तो फिर आइडिया रखें थोड़ा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना आइडिया तो रख ही सकते हैं कि सामने वाला आपको उल्लू ना बना सके। और दूसरी चीज़, बहुत बड़ी चीज़, हमारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा ट्रस्ट करें। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में शक क्यों ले आए?
क्यों हर चीज़ में ये लगता है कि अरे बाप रे वो गलत कहेंगे, या वो तो हमें उल्लू बना देंगे, या वो पता नहीं क्या सोचेंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचना? बच्चे हैं हमारे जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, हमारी तरह सोचेंगे ना, है ना? तो उस डर से बाहर निकले। ये हो गई बात। और फिर एक पेरेंट्स का जो था, उन्होंने कहा कि उनके चैलेंजेस बहुत हैं कि ये बताना कि भाई फ्यूचर में क्या है, और मनी स्मार्ट बनाना बच्चों को। मनी स्मार्ट तो ठीक है, which is very logical, and actually everybody should do that. And that parent actually said कि he is on the right path. He is already doing all that. But for knowledge of other parents, कि जो मनी स्मार्ट वाली चीज़ जो बोली कि चैलेंज है, that is actually a challenge. क्योंकि आज मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ वहाँ लोगों से मिलती जुलती हूँ और देखती हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं जानते, तो फिर बड़े फाइनेंसेस कैसे जानेंगे? तो कुछ जो जनरल नॉलेज है फाइनेंस की वो बच्चों को बतानी चाहिए कि कैसे सेव करो, और व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल, व्हाट इज़ द गुड वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, वेयर शुड यू बी इन्वेस्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत यंग एज में काम शुरू कर देते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको नॉलेज भी उस हिसाब से दे देनी चाहिए। और बीइंग एन इंडियन तो ये तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो इसके बगैर तो हम लोग नहीं चलेंगे ना। बच्चे बहुत, और बच्चे भी हमारे थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, ये सफ़ेद। तो फिर ये अलग अलग विचार आज हमने देखे अपने दोस्तों के, अपने बच्चों के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब आप नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे, जहाँ इन्हीं पेरेंट्स के बच्चे उनके चैलेंजेस बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड तक देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।